guys, today I'm in conversation with Mr. Vivek, a true passionate about cricket, and with IPL going on, people like us who know IPL but still do not know cricket in so many ways have too many questions going on in our mind, and I've got you covered today for sure. So over to you, Mr. Vivek. Get ready for some really informal questions today. नो प्रॉब्लम. मुझे लगता है बाउंसर आप मारने वाले हो आज. मुझे बैटिंग करना हेलमेट लगा के एकदम रेडी होना चाहिए क्योंकि पता नहीं कौन से बाउंसर आने वाले हैं आपकी तरफ से. लेकिन पूछिए आप जो आप पूछना चाहते हैं. Yeah, I think I'm going to remind you of your old cricket days here. Yes, why not? Why not? Really, I'm surprised because IPL seems like a TV soap opera. It's just not ending. It seems like those Ekta Kapoor series. आपको लगता है खत्म होनी चाहिए, but खत्म नहीं होती है. It's too long. Why is it so? Yes, not only it's too long, मैं बताता हूँ why it's so, and also थोड़े बहुत आजकल इस IPL में तो खासकर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ड्रामा भी हुआ है, as some of us know. थोड़ी सी बहस भी हुई है, थोड़े झगड़े भी हुए हैं, but why it is long is because अब IPL में 10 टीमें हैं. पहले IPL में 8 टीमें होती थी. So if you will notice, पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स and गुजरात टाइटंस, these two new teams got added. Yes. So 10 टीमों से क्या हो गया, सबको थोड़ा ज़्यादा अब खेलना पड़ेगा, तो इसलिए ये चलता है 2 महीने. एंड द अदर ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज कि 2 महीने चलता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट 2 महीने फिर नहीं होता है, बिकॉज यू नो BCCI वांट्स IPL टू बी द फोकस फॉर 2 months. तो अभी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका और किसी और कंट्री की कोई सीरीज नहीं हो रही है. नथिंग इज हैपनिंग, ओनली IPL इज हैपनिंग फॉर 2 months, बट दैट इज व्हाई इट इज देयर. बट यस, देयर हैज बीन a lot of report from people. लोग कह रहे हैं कि लंबा चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और ये थोड़ा बहुत आ रहा है लोगों से. Yeah, but that's how for it like 2 months I don't get any other plans made with my husband because IPL is going on. Yes, so then BCCI is to be blamed for that, for you not having plans. क्योंकि उन्होंने 2 महीने का कर दिया, 10 टीमें कर दी. But do you think a regular watcher, like a cricket enthusiast, are also enjoying that IPL has gone so long? I think if you look at India and if you look at countries like India, Pakistan, even Bangladesh, Sri Lanka, cricket crazy हैं लोग वहाँ, fans हैं वो. Eat breathe cricket. cricket है, दिन रात cricket है, और women, इसके पहले women Premier League भी हुई और वो भी बहुत famous हुई, and it really became very very popular. So India में तो मुझे लगता है लोग दीवाने हैं क्रिकेट के लिए, और 2 महीने, एक पूरा साल भी चलेगा तो भी देखते रहेंगे. तो भी चलेगा. That is also true. So I hear that IPL is like a huge money making business. People are making huge money. How are these teams sold at so and so big amount? Is it just the sponsorship or the prize money? How does this work? So first of all, to buy an IPL team, you have to be super rich. One team costs in Indian rupees about maybe around 8,000 crore rupees. So that's huge amount. That's a huge amount. 8,000 crores, 9,000 crores. तो उतना पैसा देके आप एक टीम खरीदते हैं. फिर जब आप टीम खरीदते हैं तो उसमें आपको रिटर्न चाहिए. फिर then you have to get return. Yeah, all the businessmen are getting involved. Yes. So उसके लिए कुछ चीजें हैं. So for example, जब TV rights बिकती हैं, like for example, if Star Sports has rights for IPL, okay, तो Star Sports will pay a certain amount of money to the BCCI for getting those rights. Okay. That money BCCI अपना कुछ हिस्सा रखेगी और सब टीमों में वो हिस्सा बटेगा. तो एक वहाँ से आता है. दूसरा आप देखें स्पॉन्सरशिप्स होती हैं IPL की. So for example, this year's IPL is called Tata IPL. Tata is a sponsor. So Tata ने भी पैसा दिया है. वो पैसा भी, थोड़ा पैसा BCCI रखती है, बाकी पैसा टीमों में बट जाता है. Okay. So वो सेकंड है. तीसरा आप देखें जितने इनकी प्लेयर्स की ड्रेस है, यूनिफॉर्म, जर्सीज, कितने लोगो होते हैं, you know, there's about 14 logos, 12 logos. So all of that is money as well. That money goes to that particular IPL team. और फिर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको बोलते हैं गेट मनी. गेट मनी is when people come to watch the match in the stadium. Yeah. So उसमें भी पैसा मिलता है. एक टीम होम टीम होती है, एक टीम, अब कोई भी मैच देखेंगे अगर IPL का, तो एक टीम उसका वो होम ग्राउंड होगा और एक विजिटिंग टीम होगी. अगर सनराइजर्स हैदराबाद खेल रहा है तो सनराइजर्स हैदराबाद या तो हैदराबाद में मैच खेलेगा या दूसरी टीम के होम ग्राउंड में मैच खेलेगा. तो जिसका भी होम ग्राउंड है वो गेट मनी उस टीम को मिलता है. So that is another one. So there is a lot of this, and all of this is then, and then there are certain other small sponsorships here and there. तो वहाँ से ये लोग पैसा कमाते हैं, और ये सारा 8,000 करोड़ एक ही बार में नहीं देना है. It is staggered over a number of years. But yes, that's how they want to make money on the investment that they do. So then it means IPL is like a huge money making unit. Because the numbers you're talking are big. Yes, they are huge numbers. It is, in fact, as far as I know, the second richest league in the world after NBA. NBA is the basketball league in the US.
उसके बाद आईपीएल का नंबर है. So even bigger than the football leagues in. Yes, that's what I've read. So it's definitely one of the richest. तो काफी पैसा इसमें आता है और no wonder ये 2 महीने चलती है. Exactly. You know, no wonder इसको इतना लंबा खींचते हैं because it's something which really makes money for the BCCI as well as people who are involved in the game. Wow. So maybe it's just not limited to the South Asian countries anymore. I think even the other countries' audience is increasing for IPL. I think they must be because they have every team has 4 international players. जब 11 लोग खेलेंगे तो 11 में 4 लोग मैक्सिमम आप रख सकते हैं जो इंटरनेशनल हैं, 7 लोग आपको इंडिया के रखने हैं. Okay. 4 में आप 3 रख लीजिए, 8-3 कर लीजिए, 7-4 कर लीजिए, 6-5 नहीं होगा 11 में, 7-4 इज द मैक्सिमम यू कैन गो, बट यू विल हैव मैक्सिमम ऑफ 4 प्लेयर्स अलाउड. इसलिए आप देखें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सबके प्लेयर्स भी खेलते हैं आईपीएल में आके और वो अपनी अपनी टीम्स रिप्रेजेंट करते हैं. इनफैक्ट सम ऑफ देम आर इवन कैप्टन्स ऑफ द टीम्स लाइक दिल्ली कैपिटल्स. डेविड वार्नर इज द कैप्टन, तो ये लोग कैप्टन भी करते हैं. So true. Okay, so now the question is about Virat Kohli. Such a big hype, like he's such a great player, but his team somehow has never won. What's going on there? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लग रहा था ये बाउंसर आएगा आपकी तरफ से. ये आप जरूर पूछेंगी सवाल और बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि विराट कोहली इतने बड़ा नाम, इतने बड़े प्लेयर और उनकी टीम नहीं जीतती है आईपीएल. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाइनल में जरूर पहुंची है. आई थिंक अबाउट 2 या 3 बार शायद फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन जीते नहीं है एक भी बार. तो बड़ा प्लेयर होना एक चीज है और एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना और एक विनिंग टीम बनाना एक अलग चीज है. सो वेयर एज देव हैड ग्रेट प्लेयर्स. एबी डिविलियर्स भी खेले हैं इस टीम से पहले विराट कोहली के साथ, अभी भी फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, देयर आर गुड प्लेयर्स इन दिस टीम. बट कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन उनका क्लिक नहीं हो पाता है जीतने के लिए. और दूसरी चीज क्या है, एक स्टैटिस्टिक है कि उनका जो होम ग्राउंड है बैंगलोर, होम ग्राउंड में चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में काफी मैचेस हारते हैं ये लोग. अगर इसी के मुकाबले आप देखें दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स, अब इनकी टीम होम ग्राउंड में खेलती है चेपॉक स्टेडियम में तो हमेशा जीतती है. पिछले 23 में से 2-3 मैच पहले का ये स्टैटिस्टिक है, 18 या 19 मैच वो जीते हैं होम ग्राउंड में. लेकिन यही स्टैटिस्टिक अगर आप बैंगलोर का देखेंगे तो होम ग्राउंड में इतने मैचेस नहीं जीतते. हाँ, वो और होम ग्राउंड में नहीं जीतते हैं तो फिर बाहर जाके जब दूसरी टीम के ग्राउंड में खेलेंगे वहां तो जीतने का चांस वैसे ही कम होता है बिकॉज क्राउड आपका नहीं है, ग्राउंड आपका नहीं है. यू नो, सो होम ग्राउंड में जीतना बहुत जरूरी है. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. एंड कहीं ना कहीं एक वो एक्स फैक्टर होता है, जीतने के लिए थोड़ी सी किस्मत भी चाहिए और हम सब लोग चाहते हैं बिल्कुल कि कभी ना कभी जीते. मे बी इफ नॉट दिस ईयर देन नेक्स्ट ईयर. वी ऑल वांट टू सी देम विन. इट्स अ ग्रेट टीम ऑन पेपर, इट लुक्स अ वंडरफुल टीम, बट अनफॉर्चुनेट सो फार. होपफुली अगले साल मे बी. व्हाई नॉट दिस ईयर? या मे बी दिस ईयर आल्सो. दिस ईयर अभी तो टॉप 4 में नहीं है, टॉप 4 में जाके क्वालिफाई करके हो सकता है. या पॉसिबल, बट इट्स लाइक अ बॉलीवुड मूवी समथिंग. हां बिल्कुल, अनुष्का का थोड़ा सा आ जाएगा, बॉलीवुड एंगल आ जाए और जीत जाए. आपने तो बाउंसर मारा है, अभी मैं भी अपनी तरफ से एक स्पिन फेंकता हूँ आपको. जी, आपकी कौन है फेवरेट टीम आईपीएल में? पहली बात तो आई एम श्योर आप थोड़ा बहुत तो आईपीएल देखती हैं. आई एम नॉट अज्यूमिंग कि आप बिल्कुल ज्यादा देखती हैं, बट व्हाटएवर लिटिल यू वॉच, व्हिच टीम डू यू लाइक? Though I asked question about Virat Kohli and though I have concern about his winning, but I better say CSK is my favorite because my husband wouldn't allow it any other way. I will also not allow it any other way. CSK all the way. Yeah, exactly. And I think right now India cricket somehow still means Dhoni. Yes. And yeah, so that would be my favorite. Wow. Yes. तो मैं बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि this is also my favorite team though I'm wearing red, but and Dhoni, yes, because Dhoni is ये वाला जो IPL सीजन है, अगर ये डेडिकेट करना है किसी को तो आप महेंद्र सिंह धोनी को डेडिकेट कर सकते हैं. It started with that whole hype, right? Yes. What do you think about IPL will be without Dhoni next? I think एक वैक्यूम जरूर होगा थोड़े समय के लिए. And then maybe somebody else will come in and fill in the shoes. You know, वो जैसे होता है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ. पल दो पल के बाद कोई ना कोई और नया आ जाता है. धोनी से पहले भी बड़े बड़े स्टार्स थे तो वो होगा. लेकिन एज ऑफ नाउ तो ही इज अ रेज इन द आईपीएल. उसमें फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यस, स्पेशली दिस ईयर. अगर वो अहमदाबाद में खेलते हैं गुजरात के साथ तो स्टेडियम सब येलो टी शर्ट्स वाले लोगों से भरा है, इवन दो दे आर प्लेइंग इन अदर टीम, राइट? एक चीज आपको और बताता हूँ, जो टीवी चैनल कवर कर रहा है आईपीएल को, जब विकेट गिरता है आपने देखा होगा ऐड आती है और एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाते हैं. लेकिन जब चेन्नई में मैच होता है या चेन्नई का मैच होता है, विकेट गिरता है, धोनी बैटिंग करने आ रहे होते हैं, तो वो टीवी चैनल ऐड नहीं दिखाते हैं. उस टाइम पे दे शो हिम वॉकिंग आउट इनटू द फील्ड एंड ऑल द वे वॉकिंग टिल द क्रीज एंड द क्राउड चीयरिंग फॉर हिम.
टीवी चैनल ऑल्सो अपना एड रेवेन्यू सेक्रीफाइस कर देते हैं, स्पेशली when धोनी goes out because to that's bat. bringing them the audience for sure. Yes. Thank you, Mr. Vivek. I had really good time having a conversation with you. I think I still have some more questions. My followers will also have some more questions. So let's do another round very soon. I'm just going to ask my followers that if you have such queries, doubts, whatever you have about IPL or even cricket in general, you can DM me and I'm sure he's going to answer it all. Yes, I will try my best and we'll look forward to having more discussions in the future. Thank you so much. Thank you.